Hello and good morning students, I am Shudipto. Welcome in this video class. Today's session is Remarkable Rocket. It is in the chapter of class 8 and chapter number 7. Remarkable Rocket is written by Oscar Wilde. I will discuss about Oscar Wilde. I'll tell you the summary of this story, and it is the first part of this story. So let's begin. This picture in front of you is Oscar Wilde's. His birth name was Oscar Fingal O'Flaherty's Wills Wilde. His nickname, you can say. Birth date October 16, 1854. Birthplace Dublin, Ireland. Nationality Irish. Oxford Wilde at Oxford, age 24. Wilde at Oxford, April 1876, age 22. His education, about his education, he was the student of Trinity College, Dublin. He was also the student of Magdalene College, Oxford. His father was Sir William Wilde. He was an eye doctor. His mother was Jane Francisca Elgie. She was a poet and journalist also. His sisters and brothers, like this, brother William and sister Isola, yes. And spouse, the name of his spouse is Constance Lloyd. Children, he had two sons. One is Cyril and second is Vivian. Okay. His occupation was, he was a playwright. Playwright means जो नाटक लिखते हैं, प्ले लिखते हैं, not play writer. It is playwright, novelist, poet. वो ऑस्कर वाइल्ड नॉवेलिस्ट भी था, एक कवि भी थे, poet, editor, critic. He was in the period of Victorian era or Victorian age. Victorian age started from 1837 to 1901. His famous works are as given below. The Picture of Dorian Gray, it is a novel, it is the name of a novel, and the play is The Importance of Being Earnest. The poem is The Ballad of Reading Gaol. He died November 30, 1900, age was 46 in Paris, France. Resting place is Le Père Lachaise Cemetery, Paris, France. Now, just I want to discuss summary of this story. Here is the summary of this story. A wealthy prince and a Russian princess who met for the first time and fall madly in love with each other. तो ये जो story है, it is a story about a prince, a princess, a king, their marriage, and it's just a fiction, it is just a fairy tale, just like a fairy tale. परियों का जो पौराणिक गाथा होते हैं उसी टाइप का ये भी है. तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर राजा है, राजकुमार है और राजकुमारी भी है, और राजकुमारी को देख के उसको बहुत पसंद आया, और वो ये जो स्टोरी ये उसका
जो शादी हो रहा है उसी का प्लॉट पे ये स्टोरी बना हुआ है. Their wedding is to be huge celebration for the entire area. So as it is the marriage of a prince or princess, so there must be that type of occasion. The occasion and the celebration must be huge. ये राजा का बेटा का शादी है तो ये होगा ही. वो जो टोटल जो जगह है वो जगह में ये सबसे बेहतरीन सेलिब्रेशन, मतलब बहुत धूमधाम से ये शादी का धूमधाम से ये शादी हो रहा था. विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सभी प्रकार का एंटरटेनमेंट मनोरंजन वहाँ पर था, इंक्लूडिंग फायर वर्क्स एज अ ग्रैंड फिनाले. और आखिरी दिन में सबसे बेहतरीन जो पटाखे बाजी का धमाका लेके जो बहुत सुंदर प्रदर्शन होता था, फायर वर्क्स कहते थे, जो हम दिवाली में बाजी फोड़ते हैं, उसी टाइप का उस अवसर में, उस मौके में एक दिन ऐसा था जो ग्रैंड फिनाले था. वो बाजी का जो प्रदर्शन था वहाँ पर वो होने वाला था. द प्रिंसेस has never seen fireworks, so the king and the prince are eager for her to see them. ये जो राजकुमारी था, she was totally unaware about the fireworking. fireworking क्या होता है, मतलब ये बाजी फोड़ना क्या होता है, ये इस चीज का नॉलेज नहीं था. The princess was totally unaware about the fireworks. What was fireworks? According to her, actually she was totally unaware about this fact. तो इसीलिए किंग और प्रिंस एक ग्रैंड फिनाले के एक आयोजन किया जिसमें वो बाजी फोड़ने का एक अवसर भी वहाँ पर था. सो दैट द किंग एंड द प्रिंस wanted to keep a certain arrangement, and it was a huge arrangement of just like grand finale of fireworks, that party and that occasion of their marriage. Okay. These fireworks though have the ability to speak, and they talk amongst themselves before they are launched by the pyrotechnic. So in this story it is a fiction, means it is like a fairy tale, so each and everything is possible in this type of stories. So here Oscar Wilde is telling us this fireworks means this type of the fireworks, they can talk each other. Okay, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो स्टोरी है पौराणिक टाइप का ये स्टोरी है, तो यहाँ पर जो पटाखे हैं वो आपस में बातचीत करने लगे. पायरोटेक्नीशियन मीन्स जो ये पटाखे तैयार भी करते हैं, उसको फोड़ते भी हैं और उसको बहुत बखूबी से उसको प्रेजेंट भी करते हैं, उसको पायरोटेक्नीशियन कहते हैं. तो इस आर्ट को पायरोटेक्निक कहते हैं. ये जो फायर वर्क्स का जो आर्ट है, इट इज कॉल्ड पायरोटेक्निक. Among the fireworks in a rocket, who is arrogant, proud and condescending. Condescending means he was very arrogant, proud, and वो बहुत क्या था, arrogant था. arrogant था. वहाँ पर एक रॉकेट भी था. he was very arrogant. वो जो कहता है मतलब वो किसी का नहीं सुनता है. एरोगेंट मतलब किसी का नहीं सुनना. बहुत प्राउड फील करता था, मैं ही सबसे अच्छा हूँ. ठीक है, तो ही वॉज जस्ट लाइक दैट.
When he brags about his heritage, वो उसके पिता माता क्या था, कैसा था, वो कौन सा फैमिली से बिलोंग करते थे, ये सब कुछ वो बता रहे हैं यहाँ पर. With brag means he was very proud and he was stating about his background of his family, and he is very proud about this. The others called him insensitive and he takes great offense. कोई उसको अगर insensitive बोल दे तो बहुत ही अपने ऊपर उसको ले लेते थे. To prove his sensitivity, the remarkable rocket burst into tears before he is lit and is too damp to catch fire. कोई अगर उसको बोल देता तो ये एकदम मतलब इसको कोई सेंस ही नहीं है, नॉनसेंस टाइप का है वो. इफ समवन इंडिकेट्स दैट ही इज नॉनसेंस, सो वो नॉनसेंस नहीं है. टू प्रूव दैट ही इज नॉट अ नॉनसेंस फेलो, वो क्या करते थे, वो burst into tears, वो बहुत रो देते थे. ओके, he began to cry. और इतना रोया, वो इतना रोया कि वो खुद ही गीला हो गया. वो एक पटाखा है. सो ही वॉज अ फायर, आई मीन अ फायर वर्क, समथिंग लाइक दैट. सो ही वॉज अ रॉकेट and he cried with a huge amount. The tears made him wet. Okay, and burst into tears before he is lit and is too damp to catch fire. इतना डैम्प हो गया, वो भीग गया कि वो जलाने के लायक नहीं था. The servant throws it away. तो ये कोई सर्वेंट उसको लिया और बाहर फेंक दिया. A boy takes it off and set on the fire, assuming it is a normal wood stick. एक बच्चा आया तो उसको उठाया, उसको वो आग में दे दिया. तो क्या हुआ, वो इतना देर में सूख चुका था और वो उसको सोचा कि ये कोई साधारण लकड़ी का एक डंडा है, इसको लेके वो आग में फेंक दिया. इट इज डे टाइम, ये दिन का टाइम था. द रॉकेट शोज अ ग्रेट फायर ऑन द स्काई एज इट इज डे टाइम. नो वन इज एबल टू वॉच द फायरवर्क. तो ये दिन का टाइम था, सभी लोग सो रहे थे, दोपहर था. तो किसी ने वो जब आग्नि का फैलने के बाद, आफ्टर सेटिंग द रॉकेट इन द फायर, it burst with the various fireworking. Okay, and ये अच्छा करतूत दिखाया, कसरत दिखाया ऊपर आकाश में, पर ये दिन होने के नाते कोई उसका फायर वर्किंग नहीं देख पाया. So it was a short summary. Let's go to our main topic, remarkable rocket. It starts from here. The king's son was going to be married. The king's son, राजा का बेटा शादी करने जा रहा है. So there were general rejoices. So वहाँ पर बहुत मौज मस्ती तो होगा ही. He had waited a whole year for his bride. एक साल उसका होने वाला पत्नी के लिए वो वेट किया. And at last she had arrived. एवं अभी वो आ रही है. ठीक है. She was a Russian princess. वो रशिया का राजकुमारी है. And had driven all the way from Finland in a sledge drawn by 6 reindeers. स्लेज एक गाड़ी होता है जो बर्फ में चलता है, तो उसको खींचता है कौन, 6 रेनडियर्स. मीन्स एक टाइप का डियर है, हिरन है, जिसको बलगा हिरन कहता है. तो ये बलगा हिरन उसी स्लेज को खींचता हुआ रशिया से यहां तक लेके आ रहा है. So pale she was that as she drove through the streets all the people wondered. वो इतना गोरी थी, उसको देख के पड़ोस का सभी लोग चकित
हो गए। शी इज लाइक अ वाइट रोज, वो तो एकदम सफेद गुलाब की तरह है। दे क्राइड, वो चीखने लगे। वो मतलब वहां का जो लोग है वो चीख के ऐसे बोलने लगे। एंड दे थ्रू डाउन फ्लावर्स ऑन हर फ्रॉम द बैल्कनीज, ऊपर से उसके ऊपर फ्लावर भी, फूल भी गिराने लगे। At the gate of the castle, the prince was waiting to receive her. At the gate of the castle means castle का gate में, the prince was waiting to receive her. The prince क्या कर रहे थे? Wait कर रहे थे to receive her, उसको receive करने के लिए। He had dreamy violet eyes and his hair was like fine gold. उसका जो आंखें थे, उसका आंखें वायलेट था और उसका बालों का कलर सुनहरी था। When he saw her, he sank upon one knee and kissed her hand. जब ही उसको देखा, वो एक पैर पर झुक गया और उसका हाथ में किस किया। After 3 days of preparation, 3 दिन लगातार प्रिपरेशन के बाद, तैयारी के बाद, द मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड। 3 दिन बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन के बाद, तैयार होने के बाद, भाई ये तो होगा ही, ये एक राजकुमार का शादी है, थोड़ी ना कोई नॉर्मल आदमी का शादी है, तो उतना सारा तो प्रिपरेशन लगता ही है। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट सेरेमनी। ये सेरेमनी जो है, इट वॉज फैबुलस सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी। स्टिल इट विल बी, इट मस्ट बी, बिकॉज इट इज द सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी ऑफ अ किंग्स सन। Okay, and the bride and bridegroom walked hand in hand under a canopy of purple velvet embroidered with little pearls. Canopy मतलब एक चादर होता है। एम्ब्रॉयडर मीन्स बहुत सारा डिजाइन वाला चादर होता है, शादी के मंडप पे जो बिछाया जाता है माथे सिर के ऊपर, ठीक है। उसमें बहुत सारा हीरा जवाहरात और सोने चांदी का बहुत सारा डिज़ाइन भी रहता है। तो इट इज़ द मैरिज सेरेमनी ऑफ किंग्स सन, सो इट इज़ अ नेचुरल थिंग। ओके, गो टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट स्लाइड। देन देयर वाज अ स्टेट बैंक्वेट। वहाँ पर स्टेट बैंक्वेट मीन्स a program, okay, a rich program which lasted for 5 hours. वहाँ पर एक प्रोग्राम था और ओकेशन था जो 5 घंटा लगातार चले। The prince and princess sat at the top of the great wall and drank out of a cup of clear crystal. Here, cup of clear crystal means one type of wine or whatever. Drinking of wine, it's a sign of aristocracy. Okay, you know, it is the marriage of a king's son. तो ये जो क्लियर क्रिस्टल है, वन टाइप ऑफ वाइन है, तो ये चलता है ये शादी में, और ये तो राजाओं का शादी है, उसका बेटे का शादी है, तो इट इज़ अ नेचुरल थिंग। तो क्या हुआ, 5 घंटे लगातार वो प्रोग्राम चलता रहा और प्रिंस, राजकुमार और राजकुमारी जो ग्रेट वॉल था वहाँ का, उसका ऊपर चढ़ गया, बैठ गया और थोड़ा सा वाइन पीने लगा। आफ्टर द बैंक्वेट देयर वाज टू बी अ बॉल। हियर बॉल मीन्स बॉल डांसिंग। इट इज़ अ फेमस dancing in the West, such as in the country of France, Russia, England, America. तो वहाँ पर ये राजा का शादी है, तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ होता है। तो बॉल डांस भी था। The bride and bridegroom were to dance the rose dance together. Rose dance भी होता है ऐसा, मुंह में गुलाब का फूल लेके, ये उसी के लिए सजता है, उसी के लिए ठीक है ये, ठीक है। राजा का it is the marriage ceremony of the prince or princess, whatever. So it is quite decent and it is a huge celebration program, magnificent celebration. So it is a natural thing here.
And the king had promised to play the flute. The king, I think king used to play flute. So king, ये राजा ने क्या किया, वो फ्लूट बजाने का प्रॉमिस किया, फ्लूट बजाया. He played very badly, वो बहुत गंदे तरीके से फ्लूट को बजाया. But no one had ever dared tell him so. किसी ने ऐसा नहीं बताया, क्योंकि ये राजा है, because he was the king. The last item of the program was a grand display of firework. तो लास्ट में क्या था, जो ग्रैंड डिस्प्ले था फायरवर्क का, बाजी पटाखा फोड़ने का. देयर वॉज अ ग्रैंड फिनाले ऑफ फायरवर्क्स टू बी लेट ऑफ एग्जैक्टली एट मिडनाइट. मिडनाइट में वो बाजी फोड़ने का जो प्रोग्राम वो था. The little princess had never seen a firework in her life. जो प्रिंसेस है वो कभी ये फायरवर्क्स और बाजी फोड़ना क्या होता है उसको ये पता नहीं था. So the king had given ordered that the royal pyrotechnician should be in attendance on the day of her marriage. What is the meaning of pyrotechnician? Pyrotechnician is a person responsible for the handling and functioning of fireworks. जो ये बाजी तैयार भी करते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको सजाते हैं, उसको आग भी देते हैं, उसको फोड़ते भी हैं. ठीक है, तो बाजी को जो फायरवर्क्स को जो ये सब काम करते हैं जो, उसको पायरोटेक्नीशियन कहते हैं. शुड बी इन अटेंडेंस ऑन द डे ऑफ हर मैरिज. तो राजा ने ये आदेश दिया ये पायरोटेक्नीशियन को, जे उस दिन उसको वहाँ पर रहना है, क्योंकि वहाँ पर देयर शुड बी अ प्रोग्राम ऑफ व्हाट, फायरवर्किंग, और प्रोग्राम ऑफ फायरवर्क. ओके, नाउ नेक्स्ट, what are fireworks like? She said. She had asked the prince one morning as she was walking on the terrace. They are like the aurora borealis, said the king. What is aurora borealis? Here at the end of this slide, aurora borealis, bands of green and red colored lights that are sometimes seen in the sky at night in the most northern countries of the world. So ये एक कलर का एक रंगीन लाल हरा पीला रंगीन रोशनी का एक बैंड है जो रात के टाइम हमारा उत्तरी दिशा में, हमारा वर्ल्ड का, पृथ्वी का जो उत्तरी दिशा, वहाँ पर जितना सारे देश हैं, वहाँ पर कुछ देशों में रात के टाइम ये सारा चीज़ आकाश में दिख जाता है. इट इज़ कॉल्ड अरोरा बोरियलिस. अरोरा बोरियलिस ये होता है. सेड द किंग. किंग ने उसको समझाया प्रिंसेस को, जे अरोरा बोरियलिस की तरह होता है ये फायरवर्क्स. हु ऑलवेज आंसर्ड क्वेश्चन दैट वेर एड्रेस्ड टू अदर पीपल. ये ओनली मच मोर नेचुरल. ये किंग का ये स्वभाव है, कोई क्वेश्चन अगर दूसरा किसी से पूछा जाए वो उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ये उसका स्वभाव है. आई प्रेफर देम टू स्टार्स माई सेल्फ एज यू ऑलवेज नो, देन दे आर गोइंग टू अपीयर and they are as delightful as my own flute playing. You must certainly see them. तो वो किंग ने क्या बोला, they are just like stars. When it will appear in front of you, then only you can imagine how glorious, how fabulous, how magnificent fireworks are. तो ये फायरवर्क्स बहुत अच्छा चीज़ होता है, जब तुम्हारा सामने वो आएगा तभी तुमको पता चलेगा. और इतना बेहतरीन लाजवाब है, जैसे मैंने फ्लूट बजाया उतना बेहतरीन है. मतलब कितना बेहतरीन है आप भी समझ सकते हैं उसके हिसाब से. मतलब उसका फ्लूट बजाना वो बहुत, उसका नज़रिया से मतलब किंग बहुत अच्छी तरह से फ्लूट बजा सकते हैं. ये किंग का आइडिया है खुद के ऊपर.
ओके, यू मस्ट सर्टेनली सी देम। तुमने देखा होगा मैंने कितना अच्छा फ्लूट बजाया, तुमने तो देखा ही होगा। सो एट द एंड ऑफ दिस किंग्स गार्डन अ great stand had been set up. As soon as the royal pyrotechnician had put everything at its proper place, the fireworks began to talk to each other. So there was a king, royal garden, and in the royal garden for the firework the pyrotechnician has arranged everything. Okay, in the midnight it will be happened, means fireworking will be happening in the midnight. In between this the fireworks began to talk to each other. राजा का जो गार्डन था, बगान, वो गार्डन में पायरोटेक्नीशियन सब कुछ प्रॉपरली अरेंज करके रखे थे, क्योंकि रात को ये फायरवर्क्स होने वाला है। उसी दौरान क्या हुआ, जो फायरवर्क्स था, यहाँ पर जो बाजी पटाखे था, वो आपस में बातचीत करने लगे। सो इट इज द फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, इतना तक। सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।